Hello students, this is your fourth lecture for the chapter Structure of Atom. This is very important lecture. In this lecture, you will study about arrangement of electron in an atom. The first topic of this lecture is dual behavior of matter. In 1924, de Broglie proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior, that is both particle-like and wave-like properties. 1924 में डी ब्रॉगली ने ये प्रपोज किया था कि लाइट के जैसे टू कैरेक्टर्स होते हैं, वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर. मैटर के भी टू कैरेक्टर्स होने चाहिए, पार्टिकल कैरेक्टर एंड वेव कैरेक्टर. दिस मीन्स लाइक फोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ. From this analogy, de Broglie gave the one relationship between wavelength and momentum of a material particle. ये फॉर्मूला जो डी ब्रॉगली ने दिया था वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में एक मैटर के पार्टिकल के लिए, इस फॉर्मूला को उन्होंने दो फॉर्मूला से डिराइव किया था. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एनर्जी ऑफ फोटॉन E इक्वल टू mc² होता है, जिसमें m इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ लाइट एंड c इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है. और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स E इक्वल टू h न्यू होता है, वेयर E इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट पार्टिकल एंड न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. अब इस दो फॉर्मूला को यदि हम इक्वेट करें, E इक्वल टू mc² और E इक्वल टू h न्यू, और डेराइव करें तो लैम्डा इक्वल टू h/mc आएगा, जो कि एक लाइट के पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है. यदि उसी पार्टिकल को यदि हम कंसिडर करें m इक्वल टू मास ऑफ द मैटर पार्टिकल एंड रिप्लेसिंग द c द वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय v द वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल, दिस इक्वेशन बिकम्स लैम्डा इक्वल टू h/mv. मीन्स जो लाइट के लिए जो फॉर्मूला डेराइव होगा दो फॉर्मूला से, E इक्वल टू mc² और E इक्वल टू h न्यू, दैट इज़ लैम्डा इक्वल टू h/mc, में c को v से रिप्लेस किया तो लैम्डा इक्वल टू h/mv. इस फॉर्मूला को डी ब्रॉगली ने दिया था और कहा था कि लाइक लाइट मैटर ऑल्सो हैव ड्यूल कैरेक्टर. अब ऑल ऑफ यू नो दैट मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम होता है, दैट्स वाई लैम्डा इक्वल टू h/p. हियर लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, मैटर पार्टिकल, p equal to momentum of the matter particle, v equal to velocity of matter particle, and m equal to mass of the matter particle. Now since h is a constant, you can say the wavelength of matter particle is inversely proportional to momentum. This relationship has been verified by an experiment. Now I think this point clear to all of you. According to de Broglie, like light matter also have dual character, particle character as well as wave character. Now the second topic of this lecture is Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron. मीन्स एक ही समय पे किसी भी स्मॉल पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम करेक्टली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है. मीन्स इफ देयर इज डिटर्मिनेशन ऑफ वन प्रॉपर्टी विद सर्टेनिटी, it introduce the uncertainty of other property. Means if one is certain, the second one become uncertain. यदि एक certain है तो दूसरा uncertain हो जाएगा. And this principle is applicable only for very very small particle. Mathematically, Heisenberg's uncertainty principle is written as delta x into delta p is either greater or equal to h/4 pi, where delta x stand for uncertainty in position, delta p stand for uncertainty in momentum. Now all of you know that momentum equal to mass into velocity, therefore delta x into delta mv is either greater or equal to h/4 pi. Or on rearranging this equation, we can written as delta x into delta v is either greater or equal to h/4 pi m. Here h stand for Planck's constant. H is Planck constant. So what is Heisenberg's uncertainty principle? Clear to all of you? It is not possible to determine simultaneously and exactly the position and exact momentum of an electron.
Now the next very important topic of this lecture is quantum number. Now what is quantum number? Now all of you know that according to Bohr, electrons are revolving around the nucleus in circular path called orbit or shell. इसका मतलब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, जिनको ऑर्बिट्स या शेल कहा जाता है। अब यदि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ओनली शेल्स में हैं, तो अभी तक आप लोगों को पता है कि नियर अबाउट 120 एलिमेंट्स जो हैं की डिस्कवरी हो गई है। मीन्स पीरियोडिक टेबल पे नियर अबाउट 120 एलिमेंट्स हैं। तो एटॉमिक नंबर मोर देन 100 भी होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स 2n² रूल, आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इक्वल टू 2n²। से यदि हम उन इलेक्ट्रॉन को अरेंज करें तो 6, 7 और 8 ऑर्बिट्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो जाएंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा कि एक स्पेक्ट्रम तब बनता है कि जब उसको एनर्जाइज्ड करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को इमिट करते हैं, जिसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं तो हमको उस एलिमेंट का स्पेक्ट्रम दिखता है। तो यदि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओनली 6 और 7 ऑर्बिट्स में प्रेजेंट हों तो स्पेक्ट्रम में खाली छोटी छोटी लाइंस बननी चाहिए, खाली कुछ लाइंस बननी चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रम में एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी फाइन लाइंस प्रेजेंट होती हैं जो कि बोर्स मॉडल से क्लियर नहीं होती है। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट position of electron, its energy and spin, 4 quantum numbers are used. Means quantum numbers used to get complete information about electron, that is its location, energy and spin, etc. Now the first quantum number, there are 4 quantum numbers. I am going to describe all the 4 quantum numbers one by one. Now the first quantum number is principal quantum number. Principal quantum number is represented by small n. It is the most important quantum number since it tells the principal energy level or shell to which the electron belongs. ये जो होता है इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग पे प्रिंसिपल शेल को डिनोट करता है, and it is denoted by the letter n, small n, and can have any integral value except 0. इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो सकती है। The various principal energy shells are also designated by the letters K, L, M, N, O, P, etc. Means n equal to 1 means K shell, n equal to 2 means L shell, n equal to 3 means M shell, n equal to 4 means N shell, and so on. तो ये पॉइंट तो आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा था, 9th क्लास में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं जिनको K, L, M, N, O, P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज़ फर्स्ट क्वांटम नंबर। Now what information we get from principal quantum number? The principal quantum number gives us many information. First, it gives the average distance of the electron from the nucleus. क्योंकि प्रिंसिपल ऑर्बिट न्यूक्लियस के सराउंडिंग में n1 होगा तो वो न्यूक्लियस से क्लोज होगा, 2 होगा तो वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाएगा, 3 होगा तो उसका डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। Means by knowing the value of n, we can determine the distance of electron from the nucleus. Means if it is in first orbit, it is closer to nucleus, and if it is second or third orbit, it is far from the nucleus. Means it gives the average distance of electron from the nucleus. Second, it completely determines the energy of the electron in hydrogen atom and hydrogen-like particles. क्योंकि बोर ने अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी डिटरमाइन करने का फॉर्मूला भी बताया था, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हम कम्प्लीटली निकाल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल शेल इज़ गिवन बाय 2n²। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया कि एक प्रिंसिपल ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होता है, वेयर n इज़ नंबर ऑफ द प्रिंसिपल शेल। मीन्स जब फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो 2 × 1², 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट 2 × 2², 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट 2 × 3², 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फोर्थ ऑर्बिट 2 × 4², 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं।
Now the second quantum number, azimuthal quantum number, it is also known as subsidiary or orbital angular momentum quantum number. It is represented by small l. अभी आपको मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट में बहुत सारी फाइन लाइंस, मेन लाइंस के अलावा बहुत छोटी छोटी फाइन लाइंस प्रेजेंट होती है जो कि ऑर्बिट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं होती है. तो दिस क्वांटम नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फाइन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम. मीन्स किसी भी एलिमेंट के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी फाइन लाइंस क्यों फॉर्म हो रही है वो इस क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन होता है. नाउ दिस क्वांटम नंबर गिव्स द information about first the number of subshells present in the main shell. एक शेल में कितने सबशेल प्रेजेंट हैं. सेकेंड, इट गिव्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबशेल. मीन्स किसी भी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका एंगुलर मोमेंटम इस क्वांटम नंबर से क्लियर होता है. दैन थर्ड, द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस सबशेल. अलग अलग सबशेल्स की एनर्जी इस क्वांटम नंबर का यूज़ करके निकाली जाती है, जो आगे के लेक्चर में आप पढ़ेंगे. एक प्रिंसिपल होता है अबव प्रिंसिपल, जिसमें अलग अलग सबशेल्स की एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है. एंड इट द शेप्स ऑफ वेरियस सबशेल्स प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल शेल. इस क्वांटम नंबर से अलग अलग सबशेल्स का शेप भी डिटरमाइन किया जाता है. नाउ द क्वांटम नंबर इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एल. इस क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड स्मॉल एल इक्वल टू 0 to n-1 होता है. मीन्स एल इक्वल टू 0 to n-1. अब जब n इक्वल टू 1 होगा, दैट इज़ के शेल, देन एल की ओनली 1 वैल्यू आएगी. उस 1 वैल्यू को 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा. मीन्स व्हेन n इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 1 विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 0. मीन्स फर्स्ट शेल पे ओनली 1 सब शेल है. सिमिलरली व्हेन n इक्वल टू 2 मीन्स एल शेल, जब n इक्वल टू 2 होगा देन l की वैल्यू 0 to 2-1, 0 और 1 होगी. मीन्स सेकेंड ऑर्बिट पे 2 सब शेल प्रेजेंट हैं जिसको 2s और 2p कहा जाता है. फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब शेल है जिसको 1s कहा जाता है. सेकेंड पे 2 सब शेल है जिसको 2s और 2p कहा जाता है. व्हेन n इक्वल टू 3 देन l इक्वल टू 0 to 3-1 मीन्स 0 to 2. मीन्स एल की 3 वैल्यू है 0, 1 एंड 2. मीन्स थर्ड सब शेल पे या थर्ड ऑर्बिट में 3 सब शेल है, 3s, 3p एंड 3d. जब n इक्वल टू 4 होगा तो l की 4 वैल्यूज़ होगी 0 to 3, 0, 1, 2 एंड 3. मीन्स फोर्थ ऑर्बिट में 4 सब शेल हैं जिसको 4s, 4p, 4d एंड 4f कहा जाता है. इट मीन्स आगे के ऑर्बिट्स में फिफ्थ शेल में 5 ऑर्बिट्स सब शेल्स होना चाहिए, 6 में 6 सब शेल होना चाहिए, 7 में 7 सब शेल होना चाहिए. लेकिन अभी तक के जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं उनमें फोर्थ ऑर्बिट में 4 सब शेल एंड फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ में भी 4 सब शेल तक ही प्रेजेंट हैं, क्योंकि आगे के जो सब शेल्स हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सब शेल, सेकेंड में 2, थर्ड में 3 एंड फोर्थ और उसके बाद के ऑर्बिट्स में 4 सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ से एक पॉइंट आप और नोट करेंगे, जब l इक्वल टू 0 होता है तो उसको s सब शेल कहा जाता है. जब l इक्वल टू 1 होता है तो वो p सब शेल होता है. जब l इक्वल टू 2 होता है मीन्स वो d सब शेल होता है. और l3 मीन्स वो f सब शेल होता है. Now the next quantum number is magnetic orbital quantum number. It is represented by small m. The magnetic orbital quantum number determines the number of preferred orientations of electrons present in a subshell. Means ये quantum number किसी भी subshell में present electron का orientation बताता है. Means ये एक subshell में कितने orbitals present हैं वो बताता है. Means since each orientation corresponds to an orbital, therefore the magnetic orbital quantum number determines the number of orbitals present in any subshell. Means एक subshell में कितने orbitals हैं. Magnetic quantum number is denoted by the letter small m और sometime ml भी लिखा रहता है. And for a given value of l, it can have all the values ranging from -l to +l including 0. Means l की किसी भी वैल्यू के लिए m की वैल्यू -l से +l इंक्लूडिंग 0 होती है. दैन m इक्वल टू 2l + 1 होता है. मीन्स m का फॉर्मूला है m इक्वल टू 2l + 1.
अब हम m के लिए अलग अलग सब शेल के लिए m की वैल्यू निकालेंगे। जब l 0 होता है, मतलब s सब शेल के लिए, तो m की एक ही वैल्यू आएगी जिसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स व्हेन l इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0, मीन्स l जब 0 है एस सब शेल के लिए, तो m की एक वैल्यू आएगी जिसको 0 से शो करेंगे। इट मीन्स एस सब शेल हैज़ ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस। इन अदर वर्ड्स एस ऑर्बिटल हैज़ ओनली वन ऑर्बिटल कॉल्ड एस ऑर्बिटल। जब l इक्वल टू 1 होगा तो m की 3 वैल्यूज़ आएंगी। 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। दिस 3 वैल्यूज़ आर -1, 0 एंड +1। ये 3 वैल्यूज़ होंगी -1, 0, +1। इट मीन्स P subshell has 3 possible orientation in space, or in other word you can say P subshell has 3 orbitals which are called Px, Py and Pz। इनके शेप के बारे में आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जब l इक्वल टू 2 होगा D सबशेल के लिए, तो m की 5 वैल्यूज़ आएंगी। 2 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 5 एंड -2, -1, 0, +1 एंड +2। इट मीन्स D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं। सिमिलरली जब l इक्वल टू 3 होगा f सब शेल के लिए, तो m की 7 वैल्यूज़ आएंगी। 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 एंड दीज 7 वैल्यूज़ आर -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। इट मीन्स f सब शेल पे 7 ऑर्बिटल्स हैं। आई होप दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे ऑर्बिट्स हैं। n इक्वल टू 1 k शेल, n इक्वल टू 2 l शेल, n इक्वल टू 3 m शेल, n इक्वल टू 4 n शेल एंड सो ऑन। एजीमुथल क्वांटम नंबर ने बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सब शेल है, सेकंड में 2 सब शेल है, थर्ड में 3 सब शेल है और बाकी सब में 4 सब शेल्स हैं। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताया कि s सब शेल में 1 ऑर्बिटल है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं और f सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं। Now the last quantum number is spin quantum number. Spin quantum number gives information about the spin of electron around its own axis. आपको पता है जैसे कि अर्थ सन के सराउंडिंग पे रोटेट होता है और अपने ओन एक्सिस पे भी स्पिन करता है। जब वो सन का एक चक्कर पूरा लगाता है तो 1 साल होता है और अपने ओन एक्सिस में पूरा कंप्लीट रोटेट होता है तो 1 दिन होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे रोटेट होते हैं और अपने ओन एक्सिस पे भी स्पिन करते हैं। जब वो क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं तो उसको अपवर्ड एरो या +12 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं तो उसको डाउनवर्ड एरो या -12 से रिप्रेजेंट करते हैं। अ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ माइक्रोमैग्नेट विथ अ डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है वो एक टाइनी मैग्नेट के जैसे फंक्शन करता है। If an orbital contains 2 electrons, the 2 magnetic moment oppose and cancel each other। यदि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये दोनों जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक दूसरे को अपोज करके उनके इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो आई होप ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। after knowing the 4 quantum number, you can't write the electronic configuration until the 3 rules: above rules, Pauli's rule and Hund's rules of maximum multiplicity. If you don't know these 3 rules, you can't write the electronic configuration of element. I will explain all the 3 rules in next lecture. After that, I will explain how to write electronic configuration of elements. That's all. Thank you.